Hello students. So now we are starting off with chapter 8, which is application of integrals. So basically in definite integrals what we have studied was area bounded by the curve between the limits given. Okay. We will be using that particular concept only to find area bounded by certain curves. So there is one question which I am taking an example, and that is find the area bounded by the circle x square plus y square is equals to a square. As we all know that this is the equation of a circle whose center is origin 0, 0 and whose radius is a. So in the diagram beside I have shown you the area of the circle or the diagram of the circle. Now we all know that if radius of the circle is a, area bounded by mensuration method is pi r square, that means pi a square. But how we will be using this particular concept of integrals to find the area, we'll be doing that in chapter 8. So as we know that since there is an even power on x, the curve will be symmetric with respect to y axis, that means y axis के respect में अगर हम देखें तो दो सेमी सर्कल्स हमें दिखाई दे रहे होंगे. एंड सिंस y also have a even power, I have told you, तो x एक्सिस के रेस्पेक्ट में सिमेट्रिक होगा, इसका मतलब x एक्सिस इसको टू इक्वल पार्ट्स में डिवाइड कर रहा है, दो सेमी सर्कल्स हैं. सो दैट इज व्हाई द कर्व इज सिमेट्रिक विद रेस्पेक्ट टू बोथ द एक्सिस. तो हम किसी भी एक एक्सिस के रेस्पेक्ट में इसका कैलकुलेशन कर लेते हैं, मतलब एक क्वाड्रेंट का एरिया निकाल लेते हैं, 4 से मल्टीप्लाई कर देंगे, हमें पूरे सर्कल का एरिया पता लग जाएगा. Normally in application of integrals we find the area with respect to x-axis, क्योंकि हम ऐसा मानते हैं कि x is a independent variable and y is the dependent variable. If the curve is symmetric only with respect to y-axis, तब हम y के रेस्पेक्ट में इंटीग्रल्स करेंगे, जैसे x square is equals to 4y पैराबोला है जो y-axis के रेस्पेक्ट में सिमेट्रिक है, तो हम सिर्फ उसी का एरिया कैलकुलेट करते हैं. सो हियर व्हाट वी विल बी डूइंग इन द सॉल्यूशन, सिंस सर्कल इज सिमेट्रिक विद रेस्पेक्ट टू बोथ एक्सिस, लिख रहे हैं हम कारण, देयरफॉर area bounded by the circle will be 4 times 0 to a. ये ना लिमिट, यहाँ 0 0 है, ओरिजिन का कोऑर्डिनेट 0 0 होता है, 0 to a जो भी एरिया बाउंड किया मैंने आपको दिखाया है, और वेरिएबल अपना कौन सा है, y ऑफ सर्कल. सो हमें सिर्फ y लेना है, y स्क्वायर या y क्यूब नहीं लेना है. सो हाउ विल वी गेट y, बड़ा आसान है भैया, 0 to a, the value of y will be, I think all of you will agree, it is root a square minus x square. And we all know what is the formula of root a square minus x square. I think सबको पता है. ये वो फॉर्मूला है जो बहुत काम में आने वाला है. x by 2 root a square minus x square plus a square by 2 sin inverse x upon a. और अपनी लिमिट कहां से कहां तक है, 0 to a. तो एज वी ऑल नो, पहले अपर लिमिट पुट कर देते हैं, फिर लोअर लिमिट पुट कर देते हैं. 4 इंटू अपर लिमिट पुट किया तो a by 2 इंटू 0 प्लस a स्क्वायर by 2 साइन इनवर्स 1, a अपॉन a 1 होता है, करेक्ट है, माइनस 0 पुट करेंगे तो 0 हो जाएगा, है कि नहीं, प्लस a स्क्वायर बाई 2 साइन इनवर्स 0. वी ऑल नो व्हाट इज द वैल्यू ऑफ साइन इनवर्स 0. साइन इनवर्स 0 0 होता है, लेकिन साइन इनवर्स 1 होता है पाई बाई 2, तो हो जाएगा 4 इंटू a स्क्वायर बाई 2 इंटू पाई बाई 2, करेक्ट है. और ये आ गया पाई a स्क्वायर
स्क्वायर यूनिट्स हम इस पे आगे लिख देते हैं. दिस इज हाउ इजीली वी कैन सॉल्व इट. ओके, सो ऐसे हम एरिया ऑफ द सर्कल कैलकुलेट कर लेंगे. ठीक है. Now the next example is example 3 on page 363. As I was telling you that what if the curve is symmetric with respect to only y-axis. Here the curve y is equals to x square. We all know कि ये parabola है. So sometimes they may write parabola, but sometimes they may write curve. तो इसके लिए अपने को जो अपना चैप्टर 11 था पिछले कोनिक सेक्शन 11th में, उसको एक बार से देखना पड़ेगा. I have told you also कि दैट चैप्टर वाज इम्पोर्टेंट बिकॉज एक क्वेश्चन इस पे आता है 6 नंबर का, तो वही ये चैप्टर है. एंड लाइन y is equals to 4. So we all know that y is equals to x square is symmetric with respect to y axis. ओरिजिन है हमारे पास. ठीक है. एंड द लाइन y is equals to 4 we have drawn it, लेबल कर रखा है. अब अगर अपन इसको x एक्सिस के रेस्पेक्ट में निकालना चाहेंगे ना, तो x एक्सिस के रेस्पेक्ट में अपने को एरिया मिलेगा ये वाला. अगर हम x एक्सिस के रेस्पेक्ट में निकालना चाहिए, हमें ये एरिया नहीं चाहिए भैया, हमें एरिया चाहिए कर्व और लाइन के बीच का. दैट मींस वी हैव टू डू इट विद रेस्पेक्ट टू y एक्सिस. सो प्लीज रिमेंबर दिस, हमें ऐसा नहीं करना है, ध्यान रखना. एक बार कर्व ड्रॉ करके देख लेना, आपको समझ में आ जाएगा आराम से खुद से. करेक्ट. सो दिस इज हाउ आई एम डूइंग इट. जस्ट check that. करेक्ट. तो ये हमारा कर्व है पैराबोला. ये गलती से डबल लाइन ड्रॉ गई है, तो ऐसा नहीं कि गड़बड़ है कुछ. ओके, सो रिमेंबर दिस दैट ये वो प्रॉब्लम्स है जो सामने आती है व्हेन यू ड्रॉ द डायग्राम. This is was the area bounded which we wanted to know. Correct. So how will we find this area? So now area bounded. अब भैया मुझे पॉजिटिव और नेगेटिव दोनों साइड का एरिया चाहिए. सो अगेन हम क्या कर रहे हैं, इसको लिख रहे हैं 2 टाइम्स ये वाला एरिया भी और ये वाला एरिया भी, यानी कि पॉजिटिव साइड और नेगेटिव साइड दोनों एरिया निकाल रहे हैं. बट हम लिख रहे हैं 2 टाइम्स 0 to 4. अब हमारा डिपेंडेंट वेरिएबल है x और डिपेंडेंट वेरिएबल है x और इंडिपेंडेंट वेरिएबल है y. सो रिमेंबर दिस कि हम यहां पे लिख रहे हैं x ऑफ कर्व dy, y एक्सिस के रेस्पेक्ट में सिमेट्रिक है, और 2 से मल्टीप्लाई किससे किया गया है, सिंस इट इज सिमेट्रिक विद रेस्पेक्ट टू y एक्सिस. y एक्सिस के रेस्पेक्ट में सिमेट्रिक है, इसलिए 2 से मल्टीप्लाई किया है. सो ये कितना हो जाएगा, 2 टाइम्स 0 to 4. x की वैल्यू कितनी आएगी हमारे पास, अंडर रूट वाई. x की वैल्यू यही आएगी ना, x स्क्वायर इक्वल्स टू y है, तो x की वैल्यू अंडर रूट वाई. और ये कितना हो गया, 2 टाइम्स y की पावर 3/2 अपॉन 3/2. करेक्ट. लिमिट हो गई 0 to 4. डन. आई थिंक वी कैन सॉल्व इट ना. 4/3 बाहर, ये हो गया 4 की पावर 3/2 माइनस 0. और 4 की पावर 3/2 कितना होता है भैया, 8. 8 4 जा 32/3 स्क्वायर यूनिट्स इज द आंसर. ठीक है. This is how we can find with respect to y-axis when the curve is symmetric only with respect to y-axis. Now example number 4, where we are supposed to find the area bounded by line y is equals to x and circle x square plus y square is equals to 32. Since x square plus y square is equals to 32 है, तो we all know that center 0 0 होगा और इसका रेडियस 32 का अंडर रूट एक्स स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर प्लस ए स्क्वायर के हिसाब से रेडियस होगा. सो वी हैव ड्रॉन अ सर्कल, लाइन भी बना दिया. सर्कल के सेंटर के कोऑर्डिनेट्स 0 0 हैं, ये हमें पता है. सर्कल का जो एंड पॉइंट है वो 4√2, 0 है.
लाइन और सर्कल एक दूसरे को कट कर रहे हैं किसी पॉइंट P पर, जिसके कोऑर्डिनेट्स 4,4 कैसे आए मैं अभी बता रहा हूँ, बट हमें ये दो पार्ट्स में डिवाइड करके होना होगा 0 से लेके 4 तक। कैसे पता लगा ये हमें, हम दोनों का इक्वेशन लिख लेते हैं, x स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर इज इक्वल्स टू 32 और हमने लिख लिया y इज इक्वल्स टू x। वी हैव टू सॉल्व दिस टू फाइंड द पॉइंट ऑफ द इंटरसेक्शन। अब क्योंकि एज आई हैव टोल्ड यू कि हम नॉर्मली x एक्सिस के रेस्पेक्ट में करेंगे तो हम y की वैल्यू उठाकर x की टर्म्स में लिख देते हैं, और सिंस y इज इक्वल्स टू x हमारे पास ये आ गया 2x स्क्वायर इज इक्वल्स टू 32, तो x स्क्वायर की वैल्यू 16 और x की वैल्यू प्लस माइनस 4। सो 4,0 और माइनस 4,0 यहाँ पे तो वो हमें चाहिए नहीं, 4,0 पे ये लाइंस एक दूसरे को, कर्व्स एक दूसरे को कट करेंगे। सिंस x की वैल्यू 4 है तो y की वैल्यू भी 4 ही होगी। सो पॉइंट P के कोऑर्डिनेट्स 4,4 होंगे, करेक्ट। तो यहाँ से अपन एक परपेंडिकुलर डाला, x एक्सिस पे 4,0 पे कट करता है, तो आई हैव ड्रॉन इट थ्रू टू डिफरेंट कलर्स, एक पिंक कलर एक येलो कलर है। पिंक कलर रिप्रेजेंट्स एरिया बाउंडेड बाय द लाइन टिल पॉइंट 4,4, यानी कि हमें ये एरिया ऑफ द ट्राइंगल मिल गया और ये छोटा सा एक कर्व मिल गया। तो हम ऐसा नहीं कि एरिया ऑफ द ट्राइंगल लिखेंगे, हम इसको एरिया बाउंडेड बाय द लाइन फ्रॉम 0 to 4 और फिर 4 से लेके √4 √2 तक, ये जो सर्कल ने एरिया बाउंड किया ना, ये वाला येलो पोर्शन ये, सो एरिया बाउंडेड विल बी 0 से लेके 4 तक y ऑफ लाइन dx, क्योंकि लाइन ने y 4,4 तक जो एरिया बाउंड किया है वो, और 4 से लेके 4 √2 तक, यहां से लेके यहां तक सर्कल ने जो बाउंड किया है वो y ऑफ सर्कल हो जाएगा। ठीक है, ये दोनों निकालने अपने को। अब पहले y की वैल्यू पुट कर देते हैं, 0,4 y ऑफ लाइन, y की वैल्यू लाइन में x है तो y इक्वल्स टू x dx, और सर्कल 4 से लेके 4 √2 तक कितना बनेगा, √32 माइनस x स्क्वायर। ये √a² माइनस x स्क्वायर का फॉर्मूला है ना, ये तो आप बिल्कुल ऐसे याद रख लो तरीके से। ठीक है, x का इंटीग्रल आप सबको पता है क्या होता है, सो वी नो x का इंटीग्रल क्या होता है, x²/2, और √a² माइनस x स्क्वायर इज अगेन x/2 √a² माइनस x² प्लस a²/2 साइन इनवर्स x अपॉन a, एंड द लिमिट इज 4 से लेके 4 √2 तक। इफ वी पुट 4 हियर अपर लिमिट, तो ये हो जाएगा 16/2 माइनस 0 प्लस यहाँ पे 4 √2 पुट करें तो 4 √2/2, और ये हो जाएगा 0 प्लस 16 साइन इनवर्स 4 √2 अपॉन 4 √2, ये कट के हो जाएगा 1, करेक्ट, माइनस लोअर लिमिट 4/2 √32 माइनस 16 प्लस 16 साइन इनवर्स 4 अपॉन 4 √2, 16/2 हो गया 8 प्लस 4 ये 16 इंटू साइन इनवर्स 1, साइन इनवर्स 1 होता है π/2, माइनस 4/2 इंटू 4 डिवाइड बाई 2, ये हो गया 16/2 8, ये 8 से 8 कैंसिल हो गया, माइनस 16 साइन इनवर्स 1/√2 π/4, ये हो गया π/4, ये हो गया 4π, 8π में से 4π गया तो 4π स्क्वायर यूनिट्स इज द आंसर। सो स्टूडेंट्स, आई होप you have understood the concept. Please try exercise 8.1 so that you are able to solve this, get a feel of this particular chapter where some things, some portion of the chapter have been truncated, हटा दिए गए हैं, have been deleted from the NCERT syllabus. Exercise 8.1 है, please do it in the homework, ask your queries so that I can solve them out. Okay, I hope you all have understood it. Repeatedly see this, try solving this, the examples, you will be able to do it. नया कुछ नहीं है, सिर्फ डायग्राम्स वगैरह बनाने हैं। सो प्लीज़ 11th में कोनिक सेक्शन भी पढ़ के और फिर इसको कोशिश करें। टिल देन stay home, stay safe and enjoy definite integrals की applications. Thank you.